Hello, friends. Welcome to another module of Principles of Management. This module, the title Unit 6, which is Emotions. In previous module 5, we have learned about another defects of the personality where we discuss about personality. Here in Unit 6, we will discuss about various emotions. This module will help us in understanding the different theories of emotions. There are certain issues related to emotions and emotional intelligence. This module plays a very important role in the principles of management because understanding emotion is something very important in a management which every individual as a manager should be able to control. Now, before we proceed towards this topic, let me ask you, what is your understanding on emotions? What do you feel about emotion? Okay. So, can I say an emotion is a mental and the psychological state that is associated with different types of feelings, thoughts, and behaviors? All right. Can I say emotions are subjective experience which are always associated with the mood, temperature, personality, and disposition? Right? For example, if a person is very happy and is in a very chirpy mood today, something goes wrong, he will take it very lightly. He will never react to that situation because it is based on certain temperament, certain mood, right? And so is to the day when you are totally frustrated and you are fused like anything, and some small minor issue which occurs, you will feel like you are fume up like anything. That is the last thing that you are going to do. Why did this happen? Because of that temperament, that temperature, that mood, what you were there might have impacted heavily on this. So, friends, can I say our emotion are subjective experience now? All right. So here we go with the saying and the understanding. An emotion is a mental and the psychological state that are associated with a wide variety of feelings and its behavior. Okay. So here we go further to understand different theories of emotions. Very popular theories. The first theory we are talking about James Lange theory. Then we will discuss Cannon-Bard theory. The third is Cactus-Singer theory, which we will be discussing. Fourth is Lazarus appraisal theory. And the fifth is Wiener's attribution theory. Let's understand each theories in detail. But before that, you should understand that the emotion is a composite formed of two Latin words. That is ex, that is out, that means outward, and the motion, that is movement, action, and gesture. So that's how it becomes emotion. That is ex, that is out, and motion. The combination of these two words had becomes emotion, right? So the first theory, what we are talking about, is a James Lange theory. In 1890, James Lange theory says that subjective emotional response, as we discussed earlier, the subjective emotional response are the result of psychological change within the human bodies. That means, can I say, as my body develop, if I grow and my body is little heavy and I've got certain problem in my health, so I would be always in the problem of pain, a certain agony in my mind, and anything, a small issue, I'll take it very seriously. So what the James Lange theory says, subjective emotional response are the result of
psychological change within the human bodies, where your brain perceives an event and in turn sends the message down to its neural circuitry and the other part of the brain. Am I right? Okay. So this action ultimately produces what? It produces motor, autonomic and endocrine response. Am I right? If anything which goes to your brain, it develops automatically endocrine response that results into the action. This response elicits an emotional response which is in turn perceived by the brain. Therefore, can I say it is a cyclical process? Anything that first sent to the brain respond to it and then you take action, again it go to the brain. So can I say it is a cyclical process? So this theory, can I say this, argue with the psychological behavior preceded the emotions? So James Lange theory says what? Subjective emotion response are the result of your psychological change within the bodies. Right? With this we will go to the another part of theory, that is Cannon-Bard theory. In 1927, emotions provoking event induced the subjective emotional experience and psychological arousal simultaneously. Too much of technical things. Let me explain in little a simple language. इमोशन जब किसी चीज़ को प्रोवोक करता है, इमोशन जब आपके अंदर आती है वो प्रोवोक करता है, किसी चीज़ को उत्तेजित करता है कि उस सब्जेक्टिव इमोशनल एक्सपीरियंस को साइकोलॉजिकल में इफेक्ट तब्दील कर दे. सो कैन आई से इमोशन प्रोवोकिंग इवेंट, जो ऐसे इवेंट है जो इमोशन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि किसी को चोट लग जाना, अपने खास व्यक्ति को चोट लग जाना, जैसे किसी बच्चे को चोट लग जाए तो माँ का हृदय सबसे पहले इमोशनल हो जाता है. तो माँ का हृदय प्रोवोक करता है, उसको इमोशन पैदा करता है. राइट? एंड दिस इज साइकोलॉजिकल इफेक्ट. एज सच देयर इज नॉट अ डायरेक्ट और आई कैन से एनी nervous connectivity or any electronic connectivity. It's a psychological connectivity. यही कैनन-बार्ड थियोरी ने कहा, इमोशन प्रोवोकिंग इवेंट इंड्यूसेस subjective emotional experience and psychological arousals simultaneously. Through experience, individual begin to acquire certain expectation for every given situation. Right? हर situation पर एक human being अपने experience के अनुसार कुछ चीज की expectation रखता है, and these expectations provide a filter at every situation and is processed through this filter. और ये जो सिचुएशन जो है, जो एक्सपेक्टेशन मन रखता है हर सिचुएशन पे, एज ए ह्यूमन बीइंग हम कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं, ये एक्सपेक्टेशन हर सिचुएशन को फिल्टर करता है, जो हमें तजुर्बा देता है. और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो आपका ब्रेन है वो प्रोड्यूस करता है इमोशंस एंड करस्पॉन्डिंग साइकोलॉजिकल बिहेवियर एट द सेम टाइम. राइट? सो कैनन-बार्ड थियोरी का क्या कहना था कि हर इमोशन प्रोवोकिंग जो इवेंट होती हैं वो सब्जेक्टिव इमोशन प्रोड्यूस करते हैं विच आर साइकोलॉजिकल फैक्टर. जैसे माँ और बेटे का मैंने बात किया अभी. राइट? जेम्स लांग ने क्या कहा था? सब्जेक्टिव इमोशन रिस्पॉन्स आर द रिजल्ट ऑफ साइकोलॉजिकल चेंज विद इन द ह्यूमन बॉडी. जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो चेंजेस आते हैं उसका इफेक्ट होता है आपके इमोशंस पे. और कैनन-बार्ड थियोरी ने ये कहा है कि कोई इमोशन प्रोवोक करता है साइकोलॉजिकल सब्जेक्टिव इमोशंस को. अब आते हैं थर्ड, स्कैटर-सिंगर थियोरी की बात करते हैं. स्कैटर-सिंगर थियोरी ये कहता है कि बोथ फीडबैक फ्रॉम पेरिफेरियल रिस्पॉन्स एंड कॉग्निटिव अप्रेजल, यानी कि जो भी फीडबैक हमें बॉडी के पेरिफेरियल रिस्पॉन्स होता है, जो टच फीलिंग सेंस करने की रिस्पॉन्स है, और कॉग्निटिव अप्रेजल मेंटल दैट इज इंटेलेक्चुअल अप्रेजल के थ्रू रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, वो इमोशंस है. एक तो है फीडबैक पेरिफेरल के थ्रू, टच फीलिंग के थ्रू, और दूसरा होता है इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्स. सो एक फीलिंग के थ्रू और एक इंटेलेक्चुअल के थ्रू, दोनों की रिस्पॉन्स को हम जब कहते हैं कोई रिस्पॉन्स मिल जाता है उसे हम कहते हैं इमोशनल. ये होता है स्कैटर-सिंगर थियोरी.
So can I repeat in English? It's a both feedback from peripheral responses and a cognitive appraisal of what caused those responses produce emotions. And here, friend, very important part is how one interprets a peripheral response will determine the emotions, right? Individuals level the emotions response depending on what they think is causing a response. एक अगर एग्जाम्पल लेना चाहूँ यहाँ पर, when someone interprets a stimulus as dangerous, right? किसी ने आपको इंटरप्रेट किया है कि ये स्टिमुलस बहुत डेंजरस है, it leads to a psychological analysis. जब कोई कहता है यहाँ पर ये डेंजरस है तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में डेंजर के प्रति जागरूकता आ जाती है, साइकोलॉजिकली आपके अंदर दिमाग में ये चीज़ बैठ जाती है कि ये डेंजर है. जब ऐसा होता है तो देन दिस साइकोलॉजिकल अराउजल इज इंटरप्रेटेड टू पर्टिकुलर इमोशन. जब जैसे ही साइकोलॉजिकली ये माइंड में आपके आ जाता है कि यहाँ डेंजर है तो ये इमोशंस में बह जाता है कि डेंजर है, आप डर करके चलते हैं, सावधानी से चलते हैं. एंड इट कैन बी फियर, surprise, excitement, and any other part, right? So that is what is labeled in you. So Scattersinger theory says that both feedback and peripheral response, the cognitive appraisal of what caused the response produces the emotion. जैसे अभी हमने कहा कि कोई कहता है कि वहाँ पे डेंजर है, वहाँ मत जाना, हम सावधानी हो जाते हैं और सावधानी से वहाँ से गुजरते हैं, राइट? ये जो रिएक्शंस, ये जो इमोशंस होते हैं हमारे, सावधानी से निकलना, बच के निकलना, देख करके जाना, दैट इज Scattersinger theory, right? We will go to the fourth part of the theory of emotion, Lazarus appraisal theory. When I say Lazarus appraisal theory, an individual makes an initial and sometime unconscious cognitive appraisal for situation to decide if there is a threat. Lazarus theory ये कहती है कि एक इंडिविजुअल अपने इनिशियल फेज में अनकॉन्शियस, मतलब ज़्यादा कॉन्शियस न हो, अनकॉन्शियसली कॉग्निटिव अप्रेजल सिचुएशन डिसाइड करता है अगर कोई थ्रेट होगा, और उसको कोपिंग एक्शन इज टेकन इफ नेसेसरी. एन इंडिविजुअल टेक्स अ क्लोजर लुक्स एंड आइडेंटिफाई द इमोशन वेदर ही और शी इज फीलिंग, राइट? इसका मतलब हो रहा है यहाँ पर जो लजारुस अप्रेजल थियरी ये कहती है, जब कोई व्यक्ति इंडिविजुअल इनिशियल स्टेज में और अनकॉन्शियसली, अनजाने में कोई सिचुएशन को डिसाइड कर लेता है कि वहाँ पर एक थ्रेट है, उसको कोप करने के लिए एक्शन ले लेता है, एंड ही लुक्स एंड आइडेंटिफाइज द इमोशन ही इज फीलिंग, और वो इमोशन को फील करता है जब, उसे हम कहते हैं लजारुस अप्रेजल थियरी. विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द थियरी, दैट इज Venus attribution theory. When I say Venus attribution theory, here in this theory, there are certain attributions produce specific emotion. हर attribute कोई ना कोई एक specific emotion पैदा करता है. Once the initial evaluation has been made, the individual look at the cause of the event. ऐसा कुछ हो जाता है तो जो इनिशियल कॉज ऑफ इवेंट है, व्यक्ति उस तरफ सोचना शुरू कर देता है. एंड दिस एट्रीब्यूशन ऑफ कैजुअलिटी may modify the emotion felt. It is the interaction of the perceived internal and external cause, that is controllability, and outcome that will determine emotional response. फ्रेंड, अगर इसे मैं सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में कहूँ अगर, तो क्या होता है यहाँ पर, एक सर्टेन एक एट्रीब्यूशन जो आपके इमोशंस को पैदा कर देता है. एक पर्टिकुलर टाइम पे जो इमोशंस व्यक्ति के निकलते हैं या उसकी इमोशंस जो फील होती है, उसकी इनिशियल क्या रीज़न था वो इमोशंस आने का, उससे मॉडिफाइड इमोशन रिजल्ट में आ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से दैट आपके अंदर एक पर्टिकुलर ऐसी जगह जॉब के लिए बिल्डिंग देखते हैं, वहाँ बड़ी अच्छी सी ऑफिस बनी हुई है, और आपका मन करता है जाते ही आप देख करके ये कहते हैं अगर यहाँ पर मेरी जॉब फिक्स हो जाए या मैं यहाँ पर जॉब करूँ तो कितना बढ़िया हो जाएगा मेरे लिए. अब ये जैसी फीलिंग आती है आपके अंदर, आप क्या करते हैं, ये फीलिंग आई कहाँ से थी? सबसे पहले तो ये देख करके कि ऑफिस कितना बढ़िया है, यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, कितना अच्छा एनवायरनमेंट है.
अब आप क्या करने लग जाते हैं, उसके इमोशंस जो आई है उसके लिए आप अपने आप को तैयार करते हैं कि मैं इंटरव्यू इतनी अच्छी तरीके से दूं कि मैं इधर इंटरव्यू क्लियर कर लूं, या आप ये सोर्स निकालते हैं कि यहाँ पे इंटरव्यू का, यहाँ पर रिक्रूटमेंट का क्या प्रोसेस है, कौन अप्रोप्रिएट व्यक्ति होगा जिससे मुझे मिलना पड़ेगा, जो मुझे यहाँ पर रिक्रूट कर सकेगा. सो दैट इज व्हाट आई से, व्हेन सर्टेन एट्रीब्यूशन प्रोड्यूस स्पेसिफिक इमोशन. Once the initial evaluation has made, the individual look at the cause of the event. This attribution of causality can modify the emotional field. That is what the Wiener's attribution theory all about. Now, Wiener's attribution theory further, I can say that the basic emotions are, and the basic including them are basic emotions, and propose the comprehensive descriptions of the basic emotion. A comprehensive description of the basic emotion and corresponding response to for inclusion. इस पर एक थोड़ी सी जानकारी हम लेंगे कि कॉम्प्रिहेंसिव डिस्क्रिप्शन और उसकी बेसिक इमोशन कैसे करस्पॉन्ड करती है एक दूसरे को. एक डिस्क्रिप्शन है और उसकी एक इमोशन फीलिंग है, ये कैसे रिस्पॉन्ड करती है ये हम जानते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू. यहां पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आर्नल्ड. आर्नल्ड को सब जानते होंगे. आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, टर्मिनेटर मूवी आपने देखी होगी. सो अगर आर्नल्ड को लेते हैं तो एक बेसिक इमोशंस क्या होती है उसकी बॉडी देख करके, चेहरा देख करके, उसकी जो भी फिल्म आपने देखी है, एक क्या बेसिक इमोशंस हैं उसके, कि एंग्री मैन, एवर्जन, बहुत ही करेज, डिजेक्शन, डिजायर, फियर, हेट, होप, लव, सैडनेस, ये सारी चीजें बेसिक इमोशन हो गई. अब इंक्लूजन्स क्या हैं इनके, दैट इज रिलेशन टू एन एक्शन टेंडेंसी. क्योंकि ये सारी चीज आर्नल्ड के अंदर, एंगर है, करेज है, डिजेक्शन है, डिजायर है, फियर भी है, हेट भी है, होप भी है, लव भी है, तो रिलेशन टू दी एक्शन टेंडेंसीज उसकी होगी. सो दैट इज अ बेसिक इंक्लूजन, राइट. ऐसे ही अगर हम कुछ और लोगों की हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल आप अमिताभ बच्चन की बात करें तो बेसिक इमोशन क्या है, अ मैच्योर पर्सनालिटी, राइट, एंग्जाइटी, एंगर, इंटरेस्ट, जॉय. अब इसकी बेसिक इंक्लूजन क्या होगी, हार्ड वायर्ड, काफी स्टबर्न, राइट, बॉडी इन्वॉल्वमेंट, रिलेशन टू इंस्टिंक्ट, ओके, एंड एट्रीब्यूट इज इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी. सो कॉम्प्रिहेंसिव डिस्क्रिप्शंस का बेसिक इमोशन के साथ कहीं ना कहीं कोई तालमेल जरूर है जिसकी वजह से वो इमोशंस आते हैं. ऐसे ही और एक एग्जांपल लेते हैं, पैरेट्स क्लासिफिकेशन ऑफ इमोशन. अभी मैंने कॉम्प्रिहेंसिव डिस्क्रिप्शंस के बारे में बात की थी. नाउ वी विल डिस्कस समथिंग अबाउट पैरेट्स क्लासिफिकेशन इमोशन. अब पैरेट्स क्लासिफिकेशन ऑफ इमोशंस ये कहता है, सबसे पहली चीज होती है कि प्राइमरी इमोशंस क्या है, उसका सेकेंडरी इमोशन क्या होगा, और उसका टर्शरी इमोशन, टर्शरी का मतलब होता है थर्ड इमोशंस क्या होंगे. एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. द फर्स्ट, पैरेट्स क्लासिफिकेशन ऑफ इमोशंस को समझने के लिए सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, लव. आप सभी लव के बारे में जानते होंगे. कई तरीके के लव होते हैं. यू लव टू योर मदर, यू लव टू योर सिस्टर, यू लव टू योर ब्रदर, यू लव टू योर फादर, यू लव टू योर फ्रेंड, एंड सो ऑन. ये तो प्राइमरी इमोशंस हैं आपके लव. इसका सेकेंडरी इमोशन क्या होगा, लव इज अफेक्शन इज सेकेंडरी, लॉन्गिंगनेस, लॉन्ग रिलेशन. Sometime you must be talking about satisfaction of any XYZ reason. Lust can be one of the satisfaction. So primary is love, secondary is different emotions, affection, longingness, friendliness, enjoying the company. And the third, that is tertiary emotion. I said primary emotions is love, secondary is affection, and the third, if I say tertiary emotion, it can be
एडोरेशन कि आपके लिए वो पूजनीय बन गया है, अफेक्शन, लव, फाउंडनेस, आप उसे लाइक करने लग जाते हैं, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, आप उसका केयर करने लग जाते हैं, दैट इज केयरिंग। आप कंपैशन हो जाते हैं उसके, सेंटिमेंटली अटैच हो जाते हैं. सो दिस आर ऑल टर्शरी अकॉम्पलिमेंट. लेट्स अंडरस्टैंड विद वन मोर एग्जाम्पल. इफ आई हैव टू से, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, एंगर, अ वेरी कॉमन. अभी हमने लव के ऊपर एग्जाम्पल लिया था. लेट्स टेक द ऑपोजिट एग्जाम्पल ऑफ एंगर, गुस्सा आ जाना. ये प्राइमरी है आपकी इमोशन. इसका सेकेंडरी इमोशन क्या होगा गुस्से का? इरिटेशन. आपके अंदर इरिटेशन पैदा हो जाएगी, आप एक्सेपरेशन कर लेंगे, आप रेज करेंगे उसको एनवी करेंगे, आप उससे टॉर्मेंट हो जाएंगे, राइट. ये सारे सेकेंडरी है. अब इसका फॉर एग्जांपल एंगर का प्राइमरी इफेक्ट एंगर है, तो सेकेंडरी उसका अगर आप ले रहे हैं इरिटेशन, अगर इरिटेट हो गए तो उसका टर्शरी इमोशंस क्या होगा? आप इरिटेट हो रहे हैं तो आप एजिटेट करेंगे, उसको अवॉइड करेंगे, आप क्रूचीनेस फील करेंगे, ग्रम्पीनेस फील करेंगे, अनकंफर्टेबल फील करेंगे उसके साथ. दिस आर ऑल टर्शरी इफेक्ट. सो माय डियर फ्रेंड, सो पैरेट सेज लव, joy, surprise, sadness, fear, all these are Parrot's comparison classification of emotions, right? Now we will move further. The certain issues. Here we are talking about certain issues. Here we will discuss culture and emotions. We will discuss physical responses. We will go to cultural specificity. And we will talk about relationship of genders with emotions. Alright? Now certain issue when I talk about culture, certain issue में सबसे पहली चीज होती है एक culture और emotion. There are two different views for culture and emotion. अगर हम बात करें culture और emotion की, इसके लिए अलग अलग नज़रिया है. culture के प्रति अलग नज़रिया होगा, emotions के प्रति अलग नज़रिया होगा आपका, right? So when I say culture and emotion, these are two view culture of emotions, right? And if I say universality, if I say universe के अंदर emotion are a part of human nature and is also a culture's universally the same set of the basic emotion. Emotions हर human being के अंदर होते हैं, हर culture में होते हैं, पूरे वर्ल्ड में हर व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं emotions जरूर होते हैं. और these emotions are based on cross culture research. Right? So, in 1999, Ekman has found 6 emotions which are universally recognized and applicable. ये यूनिवर्सली अगर बात करें तो 6 इमोशंस हैं जो रिकग्नाइज किए जाते हैं, जो एकमैन ने हमें बताया. और वो पहली चीज़ है एंगर, ये भी एक इमोशन है. सेकेंड इज फियर, द थर्ड इज सैडनेस, फोर्थ इज हैप्पीनेस, एंड द फिफ्थ डिसगस्टेड, and 6 is surprise. So this 6 feeling, I'll repeat: anger, fear, sadness, happiness, disgust, and surprise. So these 6 are universally recognized and applicable, acceptable emotions. Right? Now we will go, after universality, we'll go to the physical responses. What are the physical responses? Right? And then we'll discuss cultural specificity. Let's understand physical response. What do you understand by physical response? No idea? Let me explain you. Physical response is nothing but it is attached to the idea of primary emotions. That means this primary emotions as innate is the notion that each emotion causes detectable physical response in the body. Let me explain you in a very simple form. एक डर हमारे दिल में आता है, एक फियर होती है हमारे दिल में. So fear is felt as the heightened heartbeat, increased flinch response and increased muscles tension. राइट? होता है ऐसा. आपको जब डर लगने लग जाता है, कुछ लोगों की हार्ट बीट बढ़ जाती है, कुछ लोगों के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं, कुछ मसल्स टेंस्ड फील करने लग जाती है.
वो फियर आपको ये चीज करती है। तो ये क्या है फियर? कैन आई से नाउ दैट अटैच टू द आइडिया ऑफ प्राइमरी इमोशन, अटैच प्राइमरी आइडिया क्या है आपकी? फियर, एज इनेट इन द नोशन दैट ईच इमोशन causes a detectable physical response in the body. That means detectable physical response क्या हो गया? हार्ट बीट, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाना, ये इसके रिस्पॉन्स है। किस चीज़ के? फियर के। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ एंगर, गुस्सा आ जाना, ये किसी एक सेंसेशन पे बेस्ड है जिसकी वजह से आप गुस्से में थोड़े इरिटेट होने लग जाते हैं। हैप्पीनेस, चेहरे के हाव भाव बदल जाना, दिस इज अगेन अ फिजिकल रिस्पॉन्स वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट? Coming to cultural specificity. When I say cultural specificity, cultural का मतलब आप सब जानते हैं, लेकिन specificity को कहाँ से denote करेंगे? Here, let me explain you in a little different word. Human beings are like tabula rasa. What is the meaning of tabula rasa? It's a clean tablet. When I say human being is like a tabula rasa is nothing but a clean tablet on which society writes its script. यानी कि एक व्यक्ति जो है वो एक क्लीन टेबल है, एक क्लीन टेबल जैसी शीट है जिसके ऊपर हर समाज का हर व्यक्ति अपनी स्क्रिप्ट लिखता है। इन अदर वर्ड्स, कल्चर और ट्रेडिशन, नॉर्मेटिव पैटर्न एंड वैल्यू ओरिएंटेशन are responsible for not only for personality development but also for appropriate social emotional development, right? So जब हम cultural specificity की बात करते हैं, each culture has a unique set of emotion. हर culture का अपना set of emotion होता है and emotional response होते हैं. So the emotion shows in a particular culture reflects the norms, value, practices and language of that culture, right? Now we will go further to alexithymia, that is emotional disorder. आप सबने सुना होगा emotional disorder. In a different word, the language for this is noted as alexithymia. When I say alexithymia, emotional disorder, इसका मतलब होता है कुछ लोग difficult situation में लोग दूसरों के इमोशन को ज़्यादा समझना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि सम पीपल हैव डिफ़िकल्टी इन एक्सप्रेसिंग देयर इमोशन एंड अंडरस्टैंडिंग द इमोशंस ऑफ अदर। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग अपनी इमोशंस नहीं बता पाते और दूसरे की इमोशन को भी नहीं समझ पाते हैं। उन्हें पता नहीं चलता कि इस व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है और वो वही एक्टिविटी करते जाते हैं, नतीजा क्लैश, राइट? सो साइकोलॉजिस्ट कॉल दिस एलेक्सिथेमिया। यानी कि ये एलेक्सिथेमिया का मतलब होता है कुछ ऐसे तरह के लोग जो अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाते और दूसरे की फीलिंग को नहीं समझ पाते, दूसरे की इमोशंस नहीं समझ पाते हैं, साथ ही साथ अपने इमोशन को भी नहीं बता पाते हैं, उसे हम एलेक्सिथेमिया कहते हैं। दैट इज़ इमोशनल डिसऑर्डर। और वो लोग जो सफ़र करते हैं एलेक्सिथेमिया, रेयरली क्राइज आर ऑफन सीन बाय अदर एज ब्लैंड एंड कोल्ड। ये वो लोग कभी रोते नज़र नहीं आएंगे, लोगों को हमेशा एक जैसे नज़र आते हैं। ये हमेशा एक ही फीलिंग रहती है। आपने सुना होगा कुछ लोगों को या देखा भी होगा लाइफ में, कहते हैं इसके चेहरे पे तो कभी हंसी दिखाई नहीं पड़ी, ना कभी उदासी दिखाई पड़ी, ये जैसे हैं ऐसे ही रहते हैं। ये वो लोग हैं जिनको हम कहते हैं इमोशनल डिसऑर्डर, राइट? सो एलेक्सिथेमिक सिम्टम्स में बी सीन इन पीपल हु एक्सपीरियंस। ये किन लोगों, कैसे लोग होते हैं जिनके अंदर ये एक्सपीरियंस दिखाई पड़ सकता है? वो है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, सर्टन ब्रेन इंजरी जिनकी हो जाती है, जिनकी ईटिंग डिसऑर्डर हो जाती है, सब्सटेंस यूज डिपेंडेंस, वो किसी सब्सटेंस के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, अदर मेंटल हेल्थ कंडीशन। ये वो लोग हैं जो इमोशनल डिसऑर्डर में होते हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड रिलेशनशिप विथ ऑफ जेंडर विथ इमोशन। अब जेंडर में दो ही होते हैं, मेल और फीमेल। हर एक के इमोशंस अलग अलग होते हैं। अब रिसर्च ने ये बताया कि नंबर ऑफ रिसर्च फाइंडिंग सपोर्ट्स द व्यू दैट
women are more emotional than the men. Quite surprised? Yes, women's ज़्यादा इमोशनल होती है, मेंस कम होते हैं. कंपेरेटिवली वुमेन्स के इमोशंस जल्दी नज़र भी आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वुमेन्स आर assumed to be experience more frequent than intense emotion, whereas men are assumed to be emotionally inexpressive and have less intense emotional experience. Women's you can see easily emotion, but in men are little, they don't express their emotions generally. That is what the difference between gender emotions is all about. Any questions, friend? Before we go to emotional intelligence, any question over here? Let's go further. That is emotional intelligence. When I say emotional intelligence, what comes to your mind? Emotional intelligence is increasingly relevant to organizational development and developing people, because the emotional intelligence principle provide a new way of understand and assess the people's behavior, management styles, attitude, interpersonal skills and the potential. स्पेसिफिकली अगर ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं तो एचआर में इमोशनल इंटेलिजेंस EI एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज प्लानिंग, जॉब प्रोफाइलिंग, रिक्रूटमेंट, इंटरव्यूइंग, सिलेक्शन, मैनेजमेंट डेवलपमेंट, कस्टमर रिलेशन एंड अदर कस्टमर सर्विसेज, जहाँ पे ये इन्वॉल्व होते हैं ये फैक्टर्स, वहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस एक बहुत ही अहम रोल अदा करता है. Emotional intelligence is the capacity for recognizing our own feeling and those of others, for motivating ourselves, for managing emotions well in ourselves and in our relationship. एक एग्जांपल लेते हैं कस्टमर सर्विस की. आप मान लीजिए ऐसे ऑफिस में काम करते हैं जहाँ पे फ्रंट डेस्क पे आप बैठते हैं और आप सेल्स में हैं, आप कोई प्रोडक्ट बेचते हैं. आपका प्रोडक्ट आपने कमिट किया था कि 1 साल की गारंटी है, कोई ख़राबी नहीं होगी, इस टेलीविज़न के अंदर आप ले जाइए, ये ब्लर नहीं होगा, इसके स्क्रीन में कोई दिक्कत नहीं आएगी. और अगर कस्टमर वो टीवी लेकर जाता है और 6 महीने के अंदर ही उसे प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, आपको वो फ़ोन करता है, कई बार फ़ोन नहीं रिस्पॉन्ड होता है, वो आता है आपके पास और बहुत ही गुस्से में भरा हुआ होता है, और यदि आप उसकी इमोशंस को नहीं समझेंगे और आपको वो जो कह रहा है वो आपको नहीं कह रहा गुस्से में, वो तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, वो आपसे कोई दुश्मनी नहीं है उसकी, वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर के आपको जायज़ का बता रहा है, क्योंकि उसके लिए आप कंपनी है. वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप उसकी इमोशंस को समझें और उसे उसी तरह से ट्रीट करें जैसे उसके ऊपर बीती है. आप ये मान लीजिए कि आपके ऊपर बीती है, आप उसे इसी तरह से रिस्पॉन्स कीजिए और उसका सोल्यूशन दीजिए. सो यहाँ पर एक इमोशनल इंटेलिजेंस प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड डिफरेंट इमोशंस ऑफ अ पर्सन, राइट. सो हियर अंडर इमोशनल इंटेलिजेंस हम 3 चीज़ें समझेंगे. विटेलो, दैट इज CCO. Second, history of emotional intelligence, and emotional intelligence specific to Indian perspective, right. सबसे पहले चलते हैं विटेलो, that is CCU. Emotional intelligence is the ability to manage ourselves and our relationship effectively. CCU, that is विटेलो, ये दर्शाता है कि एक इमोशनल इंटेलिजेंस वो एबिलिटी है जो अपने आप को और अपने रिलेशनशिप को बहुत ही इफ़ेक्टिवली मैनेज करना चाहिए. कैसे मैनेज करते हैं? अगर मैं बात करता हूँ, आप एक ऑफिस में काम करते हैं, यहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल रोल अदा करती है, बिकॉज यहाँ पर हम एक साथ में काम जरूर करते हैं, कोई पर्सनली रिलेटेड नहीं है एक दूसरे से, बट ऑफिशियली यस वी आर रिलेटेड. हर व्यक्ति के अपने एटीट्यूड होते हैं, बिकॉज हर व्यक्ति अलग अलग समाज से, अलग अलग एनवायरनमेंट से, अलग फैमिली बैकग्राउंड से आता है, उसकी सोच अलग होती है, उसके अंदाज अलग होते हैं, उसके हाव भाव प्रकट करने के तरीके अलग होते हैं.
तो ऐसे सिचुएशन में वीटेलो दैट इज CCU ये दर्शाता है कि यू हैव टू बी अ वेरी गुड इमोशनल इंटेलिजेंस प्लेयर. If they have a little awareness, you will be obviously their own weakness and the lack of self-confidence that comes to certainty about the competency. Right? So अगर हर व्यक्ति की कॉम्पिटेंसी मापा जाए तो एक नहीं हो सकती, हर व्यक्ति की कॉम्पिटेंसी अलग होगी. और इसीलिए हमें इमोशनल इंटेलिजेंस की तरफ ध्यान दे करके यू हैव टू बी अ वेरी मैच्योर इमोशनल इंटेलिजेंट. राइट? कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज हिस्ट्री ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस. यहाँ पर हम बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की हिस्ट्री. जब साइकोलॉजिस्ट ने ये लिखना और सोचना शुरू किया कि एक इंटेलिजेंस एक कॉग्निटिव यानी कि इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट मेमोरी प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू होती है, यही होती है इमोशनल इंटेलिजेंस. लेकिन कुछ रिसर्च ने ये रिकग्नाइज किया कि सिर्फ कॉग्निटिव एस्पेक्ट दैट इज इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट ही ज़रूरी नहीं है. For example, like David Wechsler, he defines intelligence as the aggregate or a global capacity of individual act purposefully to think rationally and to deal efficiently with his environment. अगर मैं डेविड की बात करूं तो इन्होंने ये कहा कि इंटेलिजेंस ये नहीं कि मानसिक तौर पे क्या सोचना होता है, ये वो व्यक्ति किस हिसाब से रिएक्ट करता है सिचुएशन पे, ये भी इम्पॉर्टेंट है. द मेन क्वेश्चन इज वेदर नॉन इंटेलेक्टिव दैट इज अफेक्टिव एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज आर एडमिसिबल एज द फैक्टर ऑफ जनरल इंटेलिजेंस. The contention has been that such factors are not only admissible but necessary. ये ज़रूरी है कि नॉन इंटेलेक्चुअल अफेक्टिव एंड कॉग्निटिव एबिलिटी एक व्यक्ति के अंदर ज़रूरी है. सो डेविड फर्दर ऑल्सो सेज दैट it was not only researcher who saw non-cognitive aspect of intelligence to be important for adoption of success, but it take another example of writing about social intelligence in the late 30s. The work of this area, early pioneer, was largely forgotten, overlooked until 1983 when Howard Gardner ने जब अपनी थियोरी लिखा था, he wrote multiple intelligence. इसमें उन्होंने लिखा, गार्डनर ने ये बताया कि इंटरपर्सनल एंड इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टिपिकली मेजर्ड बाय इमोशनल इंटेलिजेंस. राइट? लोगों ने ये कहा कि एक इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए ज़रूरी है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होना चाहिए, कॉग्निटिव लेवल ब्रेन होना चाहिए, थिंकिंग. बट हावर्ड गार्डनर ने ये बताया कि मल्टीपल इंटेलिजेंस, जो बुक उन्होंने थियोरी लिखा है बुक के अंदर, उसमें उन्होंने बताया इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट है इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ साथ. इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के बारे में जानकारी लेना, उनके बारे में समझना. राइट? सो दैट इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस. नाउ वी विल गो फॉर emotional intelligence in Indian perspective. Now this is a very wide subject कि इंडिया के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे प्ले करते हैं. अगर मैं बात करूं श्रीमद् भगवद गीता की, जहां पे लॉर्ड कृष्णा ने अर्जुन के साथ एक पर्टिकुलर सिचुएशन थी कुरुक्षेत्र की बैटलफील्ड की, जहां पे पांडव की फाइट कौरव के साथ हो रही थी जो उनके अपने कज़न ब्रदर्स थे. राइट? और जब बैटल स्टार्ट होने वाला था उससे पहले अर्जुन को बहुत ही ग्लानि हुई और उन्हें बहुत ही फीलिंग आई कि मैं अपने फ्रेंड रिलेटिव्स के ऊपर कैसे वार करूं और कैसे इन पर आक्रमण करूं. एंड देन ही डिसाइड टू विन द बैटल ही वाज सपोज्ड टू किल दोज लिव्ड वन. ही गॉट कंफ्यूज्ड अबाउट हिज राइटफुली ड्यूटी ड्यू टू हृदय दुर्बलता. व्हाट वी से इज कि वो अपने हृदय से इतने दुर्बल हो गए थे कि अब मैं अपने ही लोगों को कैसे आक्रमण करूं और कैसे जीतूं. बट देयर लॉर्ड कृष्णा हु प्लेड अ रोल एज अ ड्राइवर ऑफ अर्जुन, जो उनके सारथी थे, उन्होंने बहुत ही अच्छा रोल अदा किया और उन्होंने एनलाइट किया एक इंटरनल ट्रूथ ऑफ लाइफ के बारे में, एक ज़िंदगी की सच्चाई के बारे में, एक कर्म के बारे में, एक धर्म के बारे में जो उन्होंने बताया, उसके थ्रू अर्जुन के अंदर एक नई फीलिंग उन्होंने भर दिया. तो अकॉर्डिंग टू लॉर्ड कृष्णा एज मेंशन इन भगवद गीता,
Arjuna suffered from indecisiveness resulting from the confusion, and the confusion was false sense of insecurity. Lord Krishna advised Arjun to become Sthita Prajana, that means the steady minded person. स्थिता प्रजना का मतलब होता है कि एक स्टेडी माइंड, एक तरफ आपका माइंड हो. सो हियर इमोशनल इंटेलिजेंस अगेन अ प्लेड अ रोल, बिकॉज वो इमोशनल हो गए कि अपने परिवार के प्रति, बट कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर चाहिए जो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को एक तरफ करके थोड़ा एक आपको आपका कर्तव्य के बारे में जानकारी दे, आपको एक तरफ स्थिर करे मन को. That's what we have depicted in Bhagavad Gita also. So emotional intelligence is an aggregate of an individual cognition of own and other emotional feeling, interpretation and action as per environmental demand. So here, if we say about Bhagavad Gita, situation demand करती थी कि आक्रमण युद्ध होगा ही होगा, युद्ध के बिना कोई रास्ता नहीं था. So that is what here in India also we talk about emotional intelligence plays a very important role. Going further, Goleman's model of emotional intelligence, we will discuss about personal competence and social competence. Let's understand the Goleman's model of emotional intelligence. Here the Goleman's discuss the competency of emotional intelligence fall into the four क्लस्टर. सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप के बारे में जानकारी रखना. सेल्फ मैनेजमेंट, खुद के बारे में सारी मैनेज करके रखना, अपनी सारी चीज़ों की ज़रूरतों को पूरी करके रखना. सोशल अवेयरनेस, दैट इज समाज के प्रति क्या अवेयरनेस रखना चाहिए. एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट. सो गोलमैन्स मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस फोकस ऑन फोर थिंग: सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, social awareness, relationship management. Right? We'll go for personal competency. When I talk about personal competency, it is nothing. एक personal individual की competency क्या होनी चाहिए? सबसे पहली बात सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन और मोटिवेशन. ये तीन चीज पर्सनल कॉम्पिटेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में जानकारी रखिए, अपने सेल्फ रेगुलेशन एंड द मोटिवेशन फॉर योर सेल्फ. If I am talking about social competence, now here the social competence is, it compromises of two dimensions, namely empathy and social skills. Empathy का मतलब होता है कि ये फील करना कि आप ही के साथ ये हो रहा है, एम्पैथाइज करना समाज के प्रति. और दूसरी चीज़ होती है सोशल स्किल्स, जो समाज को आपको एम्पैथाइज करना है और सोशल स्किल करना है. यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस आर डिवाइडेड इन टू पार्ट: personal competency and social competency. Personal competency is self-awareness, self-regulation, motivation. And if I say self-competency, friend, what is that? It is empathize and social skills. Right? The assessment of emotional intelligence and competence. How do we assess? Now the assessment are based on the three things. The oldest instrument of assessing emotional intelligence, which has been around for over a decade, the self-report instrument originally evolved not out of an occupational context but rather an clinical one. It was designed by the assessors that the personal qualities, आपकी अपनी personal qualities क्या क्या हैं, right? उसको आप assess करते हैं. That is one thing. The second instrument is multi-factor emotional intelligence scale. The first one I said is self, that is clinical, right? Which is self-awareness. The second is multi-factor emotional intelligence. And the third is emotional competency inventory. These are the three things which helps you to assess your emotional intelligence. Right, friend? I would repeat for you. First is clinical. That is clinical. You consult to some assessment theories, some scientific calculators, clinical researchers. The second is multi-factor emotional intelligence scale. And the third instrument is emotional competency inventory. Any questions, friend, before we go to summarization?
Okay, let's summarize today's learning. What is explain the Lazarus appraisal theory? We have discussed the Lazarus appraisal theory. Do you remember what was the Lazarus theory of appraisal? Do anybody remembers? Let me explain you. Lazarus appraisal theory, an individual makes an initial and sometime unconscious cognitive appraisal of the situation to decide if there is a threat. Coping action is taken if necessary, and individually takes a closer look and identifies the emotion that he or she is feeling. And explain the Goleman's emotional intelligence model. Sorry. Explain the Goleman's emotional intelligence model. We have just discussed Goleman's emotional intelligence model are based on four things, that is competency, and these four competency clusters are self-awareness, self-management, social awareness, and the last one is relationship management. Thank you very much, friend, and we have discussed about emotions. Have a great future ahead.